स्टार्ट करते हैं now. In the servlet, we need to understand there are two types of servers: web servers and application servers. Now we know that servlet enhance the quality of the server. How? What is quality of the server? Servlet enhance the quality of the server and its efficiency as well by managing the varied request. By managing the varied request, you know, for from the client sides, various clients. So, for our understanding, server is a device or computer program that accepts accepts request, accepts and responds to the request made by other program, and the other program is known as the client. Server and client are such not like somebody has a mustache or somebody has a no mustache. It's simple. These are the simple programs only. For our understanding, we just put in the slot of the servlet, and then servlet is enhancing the quality of server. It's just for our understanding. So servlet is used to manage the network resources and for the running the program or software that provides those services. There are two types of servers: web servers and application servers. What are the web servers? Web servers are the servers which contains only web or servlet container. Okay. अगर आपका सर्वर सिर्फ वेब सर्वर होगा तो उसमें सिर्फ सर्वलेट का कंटेनर होगा. ये एक लाइन में समझने वाली बात है. इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्वलेट, JSP, struts, JSF, etc. It can't be used for easily. It is a computer where web content can be stored. In general, web server can be used to host the websites, but there also use some other web servers also, such as FTP, email, storage, gaming, etc. Examples of the web servers are Apache and Tomcat and Lazy. जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना J2EE की, तो अपने चाहे जो भी PHP भी अगर आप आजकल समझेंगे, तो आपको एक सर्वर इन्वायरमेंट, वेब सर्वर इन्वायरमेंट अपना क्लाइंट अपने सिस्टम में बनाना होगा. सिस्टम को एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में चेंज करना होगा. तो ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सिस्टम को चेंज कर रहे हैं ना, यही है वेब सर्वर. ठीक है. और उसके लिए भाई पर्टिकुलर तरीके के डोमेन एस्टैब्लिश करने वाले जो कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं अपाचे टॉमकैट. अब चलिए वेब सर्वर की वर्किंग क्या है. ठीक है. अब जो वेब सर्वर है वो दो तरीके से आपसे बात कर सकता है. पहला ये है generating respond by using the script and communicating with database. Generating response by using the script and communicating with database. आपने जी रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद एक स्क्रिप्ट जनरेट हुई. स्क्रिप्ट ने क्या किया? डेटाबेस से कम्युनिकेट किया. फिर सेंडिंग फाइल टू द क्लाइंट एसोसिएटेड विद रिक्वेस्टेड URL. फिर हम कहते हैं जी हम फाइल को, जो फाइल है उसको URL के थ्रू भेजेंगे, मतलब एक तरीके से, और वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से अपनी डिमांड को मांगे. उसको समझने के लिए यहाँ पे आप एक डायग्राम है. आप एक वेब क्लाइंट है, आप HTTP रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है. फिर आप अगर आप स्टैटिक डेटा की डिमांड करते हैं तो स्टैटिक डेटा स्टोर में रखा होगा. स्टैटिक रिस्पॉन्स आएगा. फाइनली डेटा HTTP रिस्पॉन्स मॉडल से आपके वेब क्लाइंट को वो डेटा मिल जाएगा. लेकिन अगर आप एप्लीकेशन डेटा स्टोर में, एप्लीकेशन सर्वर में कोई एप्लीकेशन सर्वर इन द सेंस की
लाइक की जेबी यू नो, अब वहां पे बिजनेस लॉजिक रखा हुआ है, तो क्या हुआ कि भाई वेब सर्वर के पास चीजें जाएंगी, सर्वलेट रिक्वेस्ट करेगा इनसे, फिर वेब कंटेनर में चीजें चलेंगी, वेब कंटेनर से चीजें हो, स्क्रिप्ट रन करेगा, स्क्रिप्ट रन करने के बाद एप्लीकेशन डेटा स्टोर में अपग्रेड होगा, फाइनली आपको रिस्पॉन्स के तौर पर ना। If the requested web page at the client side is not found, then web server sends us the HTTP response error 404. In general, error 404 जो है ये हमको मिलता भी है जब हम कोई अपना काम करते हैं. When the web server searching the request page, if requested page is found, then it will send to the client as the HTTP response. If the client requests some other resources, then web server will contact to the application server and data is stored for constructing the HTTP response. Now, अब आपको समझना है कि जैसे वेब सर्वर तो ठीक है हम बनाते हैं जहाँ पे सर्वलेट जीएसपी स्ट्रक्चर सब काम करता है, अब हमको ये समझना है कि एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है. जी, एप्लीकेशन सर्वर में वेब सर्वर भी होता है और जेबी के कंटेनर्स भी होते हैं, वेब के कंटेनर्स भी होते हैं और जेबी के कंटेनर्स भी होते हैं. ये सर्वलेट के लिए भी यूज हो सकता है, जेएसपी के लिए भी यूज हो सकता है, स्ट्रक्ट्स के लिए, जेएसएफ के लिए, जावा सर्वर फेसेस, ईजेबी के लिए भी यूज हो सकता है, बिजनेस लॉजिक के लिए. It is a component-based product that lies in the middle tier of a server-centric architecture. So let's move. It provides the middleware service of the state maintenance and security, along with persistent date and data access. It is a type of server designed to install, operate, and host associated service and application for the IT services users and organization. Okay. अब देखिए ये कैसे काम करता है, आराम नीचे से चलता है. सबसे पहले देखिए फाइल्स हैं बहुत सारी, फिर डेटाबेसेस हैं, फिर डेटाबेस से सर्वर्स, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन है. ठीक है, ये हमारा सर्वर रीजन है, चाहे कहीं J2EE प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे हमने ईजेबी का सर्वर बना रखा है और वेब सर्वर का सर्वर बना रखा है, और इसको एक तरीके से मिडिल टीयर में एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम से दूर कर दिया. अब ये जो है ये हमें भेजेगा एप्लीकेशन एपीआई. अब मिडिल टियर बन गया जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड करता है या ब्राउजर के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड करता है. तो ब्राउजर क्लाइंट है, या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कोई इंटरफेस क्लाइंट है, जैसे हमारा ऐप जो जिसको आप कहते हैं, वो कनेक्ट होता है इस मिडिल टियर में, जहाँ पे J2EE प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ईजेबी बनाते हैं. वेब सर्वर में सर्वर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ईजेबी बनाते हैं, वेब सर्वर बनाते हैं, जिसकी कनेक्शन जिसके पास उसके अपने एपीआई मॉडल होते हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं. फिर ये जो कनेक्ट J2EE है, बाद में हम इसको एप्लीकेशन में चेंज करते हैं, बाद में इसको फाइल जो भी इसमें अपडेशंस होते हैं हम एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम में टियर मॉडल में, अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन अपडेट करेंगे, फाइल में तो फाइल में अपडेट करेंगे, सर्विस डेटाबेस है तो डेटाबेस में सर्वर अपडेट करेंगे. एप्लीकेशन सर्वर कौन कौन से हैं? JBoss, जैसे अपाचे टॉमकैट सिर्फ वेब सर्वर है, लेकिन जो JBoss है वो ओपन सोर्स सर्वर है. ग्लासफिश है, ये ग्लासफिश जो है ये सर्वर ओरेकल के द्वारा दिया गया हुआ एप्लीकेशन सर्वर है. वेब लॉजिक ये भी ओरेकल से है, ये ज्यादा सिक्योर्ड है. ठीक है, वेबस्फेयर जो है ये IBM का है. अब इसमें वेबस्फेयर के बारे में बताऊं, अगर आप IDE पे काम करते हैं ना, IBM के IDE पे, तो उसकी इंटीग्रेशन वेबस्फेयर पे थोड़ी और आसानी से हो जाती है. अब हम आपसे बात करते हैं कि कंटेंट की टाइप क्या है, क्या कंटेंट टाइप क्या रोल प्ले करता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल. आप देखो, content type is also known as MIME, multi-purpose internet mail extensions type. It is a HTTP header that provides a description about what are you sending to the browser. ठीक है,
कंटेंट टाइप क्या है? माइम एक्सटेंशन कहते हैं इसको, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और ये HTTP हेडर को ये बताता है, HTTP का काम तो भाई सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को इधर उधर लेना है। ये माइम जो है एक्सटेंशन ये बताता है कि आप साउंड ले जा सकते हैं, इमेज ले जा सकते हैं, टेक्स्ट ले जा सकते हैं। माइम जो है ईमेल सर्विस को प्रोवाइड करता है, और इसका क्या फायदा है कि ये नॉन स्काई कैरेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है, ये मल्टीपल अटैचमेंट्स को सपोर्ट करता है सिंगल मैसेज में। ये एग्जीक्यूटिबल ऑडियो इमेजेस और वीडियो फाइल्स बनाता है। ये अनलिमिटेड मैसेज लेंथ को सपोर्ट करता है। तो कंटेंट टाइप क्या कर सकता है? It supports the non-SKY character. It supports the multiple attachments in the single message. It supports the attachment with contain executable ID images and video files. It supports the unlimited message length. ठीक है। अब कंटेंट के जो टाइप है कैसे लिखा जाता है, जैसे टेक्स्ट बाय HTML, टेक्स्ट बाय प्लेन, एप्लीकेशन बाय MS Word। ये थोड़ा समझने वाली बात है। टेक्स्ट जो है सिंपल HTML में आ सकता है, टेक्स्ट सिंपल प्लेन फाइल में आ सकती है। MS Word जो है ये एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का। अगर हमको इस फॉर्मुलेशन में अपना रिस्पॉन्स चाहिए तो हमको एप्लीकेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन MS Access एप्लीकेशन है, जार फाइल एप्लीकेशन है, PDF फाइल एप्लीकेशन है। तो जो भी डेटा है जो किसी कंपनी के ऑथोराइज्ड है या उसकी फॉर्मुलेशन में है, तो उसको किसी API के थ्रू एक्सेस करते हैं। इसीलिए आप सुनते होंगे प्रोग्रामिंग में कि API कनेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। API कनेक्ट करना ही सबसे बड़ी बात है कि हम किसी प्रोग्राम में किसी दूसरे के वर्जन को अगर अपने में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो थ्रू API होता है। ऑक्टेट स्ट्रीम्स हैं, XZIP है। अब देखो इमेज के भी टाइप है, नहीं कोई इमेज लिख दिया तो कुछ भी चले। इमेज ठीक है, ऑडियो वीडियो गुड टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखिए सर्वलेट की जो API, एक बात तो समझ में आई ना पिछले वाले से कि टेक्स्ट बाय HTML और टेक्स्ट बाय प्लेन ही सिर्फ हम सर्वलेट से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एल्स कोई भी डेटा फॉर्मेट हमको चाहे अगर चाहिए हो, चाहे PDF फॉर्मेट में चाहिए होगा, चाहे वर्ड फाइल में चाहिए हो, तो हमको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक API की जरूरत पड़ेगी जो कंपनी द्वारा प्रोवाइड होगी, और उस API को हम अपने वेब एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मिडिल लेयर में जो हम बना रखे हैं या इसके ऊपर, और वो API के हेल्प से हम अपने डेटा को पा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा कुछ सर्वर या क्लाइंट नहीं होता है, सिर्फ ये आपके डोमेन इंफॉर्मेशन होते हैं। तो डोमेन इंफॉर्मेशन ऐसा है, समझना है कि javax.servlet एंड javax.servlet.http पैकेज क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरफेसेस और क्लासेस। ठीक है, तो javax सर्वलेट और javax एक्स अब यहाँ पे समझाता हूं मैं। जावा जो है ये कोर जावा के क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है। एक्स मतलब एक्सटेंशन। जब हम जावा एप्लेट को इंट्रोड्यूस किए थे, तो जावा एप्लेट को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा क्या हुआ कि इंटरनेट डोमेन एकदम से लीप एंड बाउंड तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया, बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। हमने एक एक्सटेंशन लाया अपने कोर जावा लाइब्रेरीज में, उसी को कहते हैं जावा एक्स। उसी एक्सटेंशन का एक पार्ट है सर्वलेट। ठीक,
तो जावा एक्स के सर्वलेट लाइब्रेरी में फिर हमने एक एक्सटेंशन लाया, एचटीटीपी पैकेज। ठीक है, तो ये एक पैकेज है जावा एक्स डॉट सर्वलेट, और ये पैकेज है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी, भाई उसको आगे ले जाने के लिए। ठीक है, तो जावा एक्स क्या है? पैकेज कंटेन्स मेनी इंटरफेस एंड क्लासेस दैट आर यूज्ड बाय द सर्वलेट और वेब कंटेनर, वेरी इंपॉर्टेंट, और these are not specific to any protocol। ठीक है, अब और ये जो है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एचटीटीपी रिक्वेस्ट ली जाती है। ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट में कोई भी कैसा भी टाइप का रिक्वेस्ट उसको हम एंटरटेन करेंगे। जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी की जो रिक्वेस्ट है उसमें हम सिर्फ एचटीटीपी प्रोटोकॉल को जो मैनेज करता है उसकी रिक्वेस्ट। अब देखते हैं जी इंटरफेसेस कौन कौन से हैं जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में। इंटरफेसेस ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड आर्किटेक्चर के बेस है। तो उस जावा एक्स पैकेज में कौन कौन से इंटरफेसेस होते हैं? सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सिंगल थ्रेड मॉडल, फिल्टर कॉन्फ़िग, फिल्टर चेन। फिल्टर चेन, एक मिनट मैंने इसको क्लोज कर दिया है। तो हम लोग इंटरफेसेस की बात कर रहे थे। तो there are many interfaces in Java X dot servlet dot package। एक है सर्वलेट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, जो रिक्वेस्ट है उसको डिस्पैच करने के लिए भी एक इंटरफेस है। फिर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी इंटरफेस है। सर्वलेट को कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए कि किस टाइप का फाइल है, वो भी एक इंटरफेस। सर्वलेट का थ्रेड मॉडल है, हमने देखा था स्टार्टिंग में सर्वलेट पढ़ते हुए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल को देखता है, फिल्टर करता है, फिल्टर को किस हिसाब का कॉन्फ़िगरेशन है, फिर फिल्टर चेन्स है। सर्वलेट के लिसन करने के लिए इंटरफेस है, सर्वलेट के एट्रीब्यूट को लिसन करने के लिए इंटरफेस है, सर्वलेट को कंटेक्स्ट को लिसन करने के लिए इंटरफेस है, सर्वलेट को एट्रीब्यूट लिसन करने के लिए इंटरफेस है। अच्छा, ये तो हो गए इंटरफेसेस। क्यों इंटरफेसेस जरूरी होते हैं? ये इंटरफेसेस जो होते हैं किसी पैकेज में क्लासेस को कनेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से क्लासेस हैं जावा एक्स और सर्वलेट पैकेज में? जेनरिक सर्वलेट, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, रिक्वेस्ट रैपर, रिस्पॉन्स रैपर, रिक्वेस्ट इवेंट, कंटेक्स्ट इवेंट, सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, सर्वलेट कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट, सर्वलेट एक्सेप्शन, अनेबल एक्सेप्शन। अब एक्सटेंशन कौन कौन से हैं जावा एक्स सर्वलेट में? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सेशन, HTTP सेशन लिस्टनर, HTTP सेशन एट्रीब्यूट लिस्टनर, HTTP सेशन बाइंडिंग, HTTP एक्टिवेशन लिस्टनर, HTTP सेशन कंटेक्स्ट। क्लासेस कौन कौन से हैं HTTP पैकेज में? एक्सटेंशन HTTP सर्वलेट कुकी, जो हमारे नॉर्मल वेबसाइट को मैनेज करने में भी यूज होते हैं, HTTP सर्विस रिक्वेस्ट रैपर, HTTP सर्विस सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रैपर, इवेंट मैनेजमेंट, सेशन का इवेंट मैनेज करने का, देन HTTP सेशन बाइंडिंग इवेंट, HTTP यूटिलिटीज डिपेंड अपॉन द हमारी नीड के हिसाब से। Now what is servlet interface? Servlet interface provides a common behavior to all servlets, very important. Servlet interface methods that all servlets must implement. ये तो important है, ये करना ही है हमको। Servlet interface needs to implement creating any servlet, either directly or indirectly. It provides 3 lifecycle methods that are used to initialize the servlet, to request the servlet and destroy the servlet, and 2 non-cycle methods. Okay, तो मैं सर्वलेट
कि मैं इंटरफेस मॉडल की वजह से हमको सर्वलेट की लाइफ साइकिल पढ़नी है कि वो कैसे अपने आप को इनिशियलाइज करता है, फिर रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और कौन कौन से मेथड्स हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। ओके, ये मेथड्स हैं, इसको फिर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, मेथड्स में ही कैसे कैसे हम इसको समझेंगे ना। अभी पब्लिक वॉइड इनिट, ओके, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा घर पे जाके, तो इस वेबसाइट को रेफर भी कर लीजिएगा। पब्लिक वॉइड इनिट सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, पब्लिक वॉइड सर्विस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड मॉडल क्या करता है, डिस्ट्रॉय क्या करता है, कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िगरेशन आपसे लिया